So therefore, practice is very, very important. So planning, preparation, practice, then presentation. So wherever you see, management is scientific also. It develops your mind in such a way that you can address the issues scientifically. Diverse objectives people are having. Your objective is to integrate the individual objectives with the organizational objectives. You have to see that what are the individual aspirations and then try to link it to the organizational aspirations. Working for an organization is a difficult task, and for that this basic skill, not restricted only to decision making, your skill to coordinate, your skill for interpersonal relationship. You'll find that the same person to whom you are liking, it is not because of his efficiency. It is because of the fundamental behavior. Your fundamental behavior is matching with the fundamental behavior of that person. You have to understand that basics also. You have to go beyond that. Start thinking beyond that and get useful results. In a nutshell, this particular discipline, it nurtures your psychological mind, your ability to communicate, your ability to decide, your ability to coordinate, your ability to take stress also, your ability to see that how this stress is going to integrate the individual and the organizational objectives. And ultimately you have to be effective at your workplace. So it is an evolving discipline. Lot of changes they are coming out. And all those changes you have to think, you have to assimilate, and you have to see that which area they all have to adopt. With these few initial observations, I welcome you all once again to this management program, and I wish you all the best in your future endeavors. And through this Swayam Prabha live session interactions with the faculty, with the counselors, which will be later on available in your YouTubes also, you will definitely enhance your capability in this particular program of management. I wish you all the best. Thank you very much. So thank you so much for providing a snapshot of what management program is all about and giving your chief guest and would deliver the convocation address. Besides this, Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Education,
Skill Development and Entrepreneurship, Government of India will be the guest of honor at IGNOU headquarters, Delhi. At Regional Center Cochin, Honorable Mr. Justice S. Siri Jagan, former Judge, High Court of Kerala and Acting Vice Chancellor of the National University of Advanced Legal Studies, Nuance Kochi, will be the guest of honor. I invite all of you who are present here to view the web broadcasted convocation at IGNOU headquarters, Delhi. After the convocation gets over at headquarters, we will start with our function. So, invite each one of you to kindly watch the webcasted convocation proceedings at IGNOU headquarters, Delhi. माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि वह दीप प्रज्वलन किए। कुल सचिव महोदय से अनुरोध है कि वह मंच पर आए। कुलपति महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करें। माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूँ। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि अतिथियों का स्वागत करें और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। छत्तीसवें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, क्षेत्रीय केंद्र इम्फाल में मणिपुर के माननीय राज्यपाल श्री सुश्री अनुसुईया उइके, क्षेत्रीय केंद्र शिलांग में मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, क्षेत्रीय केंद्र देहरादून में डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, क्षेत्रीय केंद्र त्रिवेंद्रम में आर बिंदु, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री केरल सरकार, अन्य क्षेत्रीय केंद्रों के दीक्षांत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि
प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और सम्मानित अतिथि, समकुलपति, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद और योजना परिषद के सदस्य, अध्ययन अध्यापीठों के निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, प्रभागों केंद्रीय इकाइयों के प्रमुख, संकाय सदस्य, शिक्षाविद एवं विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्रों और मुख्यालय में मौजूद गैर शिक्षण कर्मचारी, मीडिया कर्मी, हमारे पूर्व छात्र और मेरे प्यारे छात्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय नई दिल्ली और 36 क्षेत्रीय केंद्रों में 36वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। इस अवसर के लिए हमारी मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। माननीय राष्ट्रपति जी हमारी समृद्ध विरासत की लोकतांत्रिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। उनका समर्पण, नेतृत्व और आम लोगों की चिंता अनुकरणीय है। हम भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति से सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हम 2.7 लाख से अधिक छात्रों को विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। मुख्यालय और 36 क्षेत्रीय केंद्रों में 36वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों का इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। इस दीक्षांत समारोह में इग्नू का संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना वास्तव में मेरे लिए गौरव का क्षण है। विस्तृत प्रतिवेदन आपको सर्कुलेट किया जा चुका है। यह विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वर्तमान में 35 लाख छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं। 37 वर्ष पूर्व यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 36वां कन्वोकेशन है। 38 लाख पूरा छात्र है। 35, 36, 37, 38 लाख ये हमारी उपलब्धि है, पहुंच है, गुणवत्ता है, क्षमता है। प्रतिवर्ष हम लोग 13 लाख छात्रों का प्रवेश लेते हैं। साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। 8 लाख छात्र जून और दिसंबर 2 बार पूरे देश में 1000 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से और विदेश में भी परीक्षाएं ली जाती हैं। हमारे 69 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसमें 12 क्षेत्रीय केंद्र आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ असम राइफल्स के साथ भी हैं और 2000 से ज़्यादा हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, जिनके द्वारा हम छात्रों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे छात्रों में 49% महिलाएं हैं। 50% ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं। और अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को देखें तो वहाँ पर जो छात्र हैं उसमें ट्राइबल्स का प्रतिशत 50% के ऊपर है। हम जेल के कैदियों को भी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और निःशुल्क शिक्षा है और उनकी संख्या 7000 से ऊपर है। और उनको यह शिक्षा का अवसर इसलिए प्रदान किया जाता है कि जेल की सजा काटने के बाद जब वो समाज में आए तो अपने हुनर से राष्ट्र की सेवा कर सके। फिजिकली चैलेंज लोगों की संख्या भी हमारे पास 5000 है और उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि उनके अनुरूप जो शिक्षण सामग्री है और जो शिक्षण प्रशिक्षण की विधि है उसको उपलब्ध करा सकते हैं। अभी MBA ने इसके लिए ऑडियो बुक्स भी तैयार कर रखा है। हम 300 से ज़्यादा शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहे हैं और गत वर्ष हम लोगों ने 38 ODL और 16 ऑनलाइन नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया। उसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसमें किस प्रकार से दक्षता शामिल करें,
किस प्रकार से कौशल को शामिल करें, मानवीय मूल्यों को समाहित करें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने सभी पाठ्यक्रमों को परिवर्तित भी किया है। इसमें गुयाना के लगभग सभी पाठ्यक्रमों के लिए हम लोगों को वहाँ पर शिक्षण कार्य उपलब्ध कराना है। हम लोग डिजिटल एजुकेशन में भी लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं और स्वयं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है उसमें स्वयं कोर्सेज में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 193 कोर्सेज का है और हम लोग राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इस स्वयं के भी हैं। इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो 14 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और इसमें हम लोग MBA पाठ्यक्रम के लिए भी लाइव काउंसलिंग स्वयंप्रभा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। स्वयंप्रभा के हमारे पास 4 चैनल हैं, जिन चैनलों का प्रयोग हमने जैसा कि पूर्व में बताया था मातृभाषा में शिक्षण और MBA के शिक्षण में लगातार प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग की योजना यह है कि घर तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। इसके लिए इन चैनल्स का हम लोग बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें और लगातार हम लोग अन्य विषयों को भी इसमें शामिल करके उच्च शिक्षा की लौ हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे जो 193 स्वयं कोर्सेज है उसमें 126 कोर्सेज देश के प्रतिष्ठित संस्थानों ने अपने यहाँ क्रेडिट ट्रांसफर के तहत अंगीकृत किया हुआ है, जिसमें IIMs और IITs भी शामिल हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भी इन पाठ्यक्रमों को अपने क्रेडिट ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल किया है। हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध हैं उसमें QR कोड का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक अभिनव प्रयोग है जिसमें पूरे देश में लगभग 34 लाख लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें इग्नू का भागीदारी 22 लाख। इग्नू के अधिकांश छात्रों का पंजीयन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हो रहा है। इसके अलावा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में भी हमारे 25 लाख छात्रों के डिग्रीज पहुंच चुके हैं और अभी जो आज हम लोग डिग्री कंफर करेंगे उन डिग्री को हम लोग ब्लॉकचेन के माध्यम से सारे छात्रों को 11:25 पर उपलब्ध करा देंगे। वो अपने घर से ही उस डिग्री को प्राप्त करेंगे और ये संपूर्ण डिग्री नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में भी शामिल हो जाएंगे, जिससे वो उस डिपॉजिटरी के द्वारा अब उनको कहीं पर भी फिजिकल मोड में उन डिग्रीज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने BA, BSc और BCom में स्किल कंपोनेंट को शामिल करते हुए अप्लाइड पार्ट को शामिल किया है और इसमें कुछ पाठ्यक्रम BA और BCom के शामिल शुरू किए हुए हैं। हमने अपने पूरा छात्रों से संपर्क जोड़ने का प्रयास किया है। 38 लाख हमारे पूरा छात्र हैं और इसके लिए डिजिटल माध्यम से एलुमनी नेटवर्क हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसमें प्रति सप्ताह हम लोग उनसे बात करते हैं। पिछले 2 वर्षों से क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से और अभी स्कूलों के माध्यम से लगातार उन छात्रों से संपर्क में हैं जो हमारे विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ रहे हैं और जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के गौरव को हमेशा आगे बढ़ाया है। आज उनमें पंजीयन की संख्या लगभग 60,000 हो गई है और ये निःशुल्क पंजीयन है। ऑनलाइन इंटरेक्शन बेहतर कनेक्शन के लिए उपयोगी रहा है। हमने सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है और पिछले 3 वर्षों में हमारा विश्वविद्यालय देश के सभी विश्वविद्यालयों से सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के कारण कनेक्शन में बेहतर रहा है और उनकी संख्या 5 लाख से ऊपर रही है। हमने इनोवेशन में भी बहुत अच्छा काम किया है और इनोवेशन में हमें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नॉन जो कन्वेंशनल कैटेगरी है उसके तहत प्रथम स्थान भी हमें प्रदान किया है। हमने इनोवेशन क्लब भी बनाए हैं, यूपी पोर्टल भी बनाया है, आइडिया बैंक भी बनाया है। एक और महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने किया है कि हमारे स्ट्राइड ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक्स को पूरे देश के शिक्षकों में अवेयरनेस करने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया है और यह पाठ्यक्रम 7 दिन का है, ऑनलाइन है और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के सभी शिक्षकों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक्स को समझने और जानने और क्रियान्वयन में बेहतर सुविधा होगी। ये निःशुल्क है और अब तक इसमें भी 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने अपनी भागीदारी की है। इसी बीच में सरकार ने एक और बात की कि क्या इस प्रक्रिया को हम लोग सामान्य जनता तक या सामान्य अन्य लोग जो शिक्षक नहीं उन तक भी पहुँचाई जा सकती है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्वयं कोर्स भी स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्थापित किया है।
ये हमारे संक्षिप्त ब्यौरा है जो पिछले वर्षों और इस विश्वविद्यालय की गौरव गाथा को प्रस्तुत करता है। इस संपूर्ण यात्रा में हमारे शिक्षक साथी, हमारे कर्मचारी साथी, हमारे कैडेट साथी सब और हमारे जो पूरा छात्र है और हमारे वर्तमान छात्र हैं, सब ने अपना योगदान दिया है। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर और विनयपूर्वक कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान और अभिनंदन करें। कुल सचिव महोदय से अनुरोध है कि वह मंच पर आए। जब तक कुलपति महोदय डिग्री डिप्लोमा प्रदान करते और दीक्षा देते हैं, सभी छात्रों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े रहें। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे 31 विद्यापीठ के 2,79,918 सफल विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित शक्तियों के अंतर्गत मैं आपको डिग्री डिप्लोमा प्रदान करता हूं और आपने जो योग्यता अर्जित की है उसके सुयोग्य होने का आह्वान करता हूं। मैं आपके समक्ष स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 9 विद्यार्थियों को आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। पहले विद्यार्थी हैं सुश्री दीक्षा शर्मा। इनको प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन सोशल साइंसेज मिल रहा है। हमारी दूसरी बेहतरीन विद्यार्थी है त्रिवेदी मृगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी। अगले विद्यार्थी हैं नमित अरोड़ा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब मैं बुलाना चाहूंगा चित्रसेन बेहरा को, जिन्हें बैचलर ऑफ एजुकेशन में गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। अगले विद्यार्थी हैं चिराग कुंद्रा, बैचलर ऑफ साइंस हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर सत्यकांत जी,
विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और कर्मचारीगण, शिक्षकगण और अभिभावकगण, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। एक खुशी की बात है कि आज बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने जीवन और करियर का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया है। ये अवसर विद्यार्थियों के साथ साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस डिग्री या सर्टिफिकेट से आप सबके लिए जीवन में आगे बढ़ने के नई रास्ते भी खुलते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे लगभग 2,80,000 विद्यार्थियों में गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या 55% के करीब है। इस समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में आधे से अधिक गर्ल स्टूडेंट है। शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की निरंतर उन्नति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देवियों और स्वजनों, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इग्नू बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। एक्सेस टू हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने में इग्नू की सराहनीय भूमिका रही है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि कुल विश्वविद्यालयों में से करीब 50% विद्यार्थियों में से करीब 50% विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं तथा 50% महिलाएं हैं। दूर दराज के इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों और अधिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने में इस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इग्नू के शिक्षण कार्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी की सहायता से उनके विद्यार्थियों ने अपने कामकाज, परिवार के भरण पोषण तथा अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में 35 लाख से अधिक विद्यार्थी इस विद्यार्थियों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें 40 अन्य देशों के विद्यार्थियों भी शामिल हैं। देवियों और स्वजनों, शिक्षा की ज्योति से अज्ञान अंधकार में ज्ञान की प्रकाश फैलता है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हो रही है कि हमारी जेल यूनिवर्सिटी इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रही है। ये शिक्षा जेल इनमेट्स के रिहैबिलिटेशन तथा कारावास से निकलने के बाद एक बेहतर जिंदगी शुरू करने में उनके लिए सहायक होगी। शिक्षा की धारा निराशा में आशा का संचार करती है तथा जीवन में आगे बढ़ने की योग्यता प्रदान करती है। उच्च शिक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये प्रसन्नता का बात है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों भी इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रही है। देवियों और स्वजनों, बहुत से विद्यार्थियों को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस की वजह से हायर एजुकेशन को जारी रखने में कठिनाई होती है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में इग्नू जैसे संस्थान बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अभी नौकरी या स्वरोजगार में व्यस्त है, वे भी स्किल अपग्रेड करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इग्नू से अपनी शिक्षा जारी रख रही है। ऐसे अर्नर और लर्नर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके अंडर एम्प्लॉयमेंट से बाहर आ सकते हैं और प्रगति के नए स्तर प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार डिस्टेंस एजुकेशन की व्यापक सामाजिक आर्थिक उपयोगिता है। ऐसे विद्यार्थियों को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करके इग्नू एक बहुत उपयोगी सेवा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शिक्षा नीति में अन्य महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ भारतीय परंपराओं के प्रति गौरव का अनुभव करने तथा भारतीय भाषाओं को अध्ययन का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने से बड़ी पैमाने पर विश्व स्तरीय नवीन ज्ञान विज्ञान का सृजन संभव हो सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इग्नू के शिक्षण स्वयं प्रभा चैनलों और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अनेक भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबको जो उपाधियां मिली है वो आपकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति आपके समर्पण एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सिविल सर्विस, समाज सेवा, कला और संस्कृति तथा खेलकूद समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ओपन लर्निंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके आज कोई सिविल सर्विस देश के प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब ने जो ज्ञान और कौशल अर्जित किए हैं ये आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी। अंत में मैं आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंस लर्निंग के विश्व स्तर के प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे तथा शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। First of all, we have invited to the dais Dr. J.S. Dorothy, Regional Director, RC Cochin, and Mr. Jagan S. Siri, Mr. Justice S. Siri Jagan, former Judge, High Court of Kerala and Acting Vice Chancellor of NUALS Kochi to the dais. Now I invite our regional head of the Regional Evaluation Division, Dr. Sindhu P. Nair, to kindly welcome the guest of honor, Justice S. Siri Jagan, with a bouquet of flowers. Now I invite the Regional Director to welcome the guest of honor and present the Regional Center Cochin report of the convocation. Guest of honor of the convocation, Honorable Mr. Justice S. Sri Jagan, former Judge,
High Court of Kerala, and Acting Vice Chancellor, the National University of Advanced Legal Studies, distinguished educationalists, academicians, other guests, member of the media, colleagues, ladies and gentlemen. The 36th convocation, you were the witness to what has happened, and the chief guest and the guest of honor at headquarters, and you are listening also to the Vice Chancellor's report. And when it comes to the regional center, it's my privilege to have with us the Honorable Mr. Justice S. Sri Jahan as guest of honor. He was born on 21 January 1952 and is a native of Kollam district. Sir has graduated LLB from the Government Law College, Trivandrum, and has done his post-graduation from Cochin University of Science and Technology. Sir was elevated as judge on 10th February 2005 and has retired as judge on 22nd January 2014. Sir is also the chairman, Sabarimala High Power Committee, appointed by the High Court of Kerala, and chairman, Justice S. Sri Jahan Committee for assessing the compensation for stray dog victims, appointed by the Supreme Court of India. And sir is presently acting Vice Chancellor at the National University of Advanced Legal Studies. I welcome you, sir, to be with us, and sure sir is going to share something which will have a take-home message for all of us. At this time, I also fondly recall all the founding regional directors, starting from Professor Satyapalan, Dr. Vasudevan, Dr. B. Sukumar, Dr. Divakar Nair, Dr. Venugopal Reddy, Dr. Shanmugam, Dr. Ashok Kumar, and Dr. M. Rajesh, and Dr. Sindhu P. Nair, who is currently heading the Regional Evaluation Center, Kochi. And we are also very grateful to show that in the Regional Center Cochin campus, we have three offices. One is the Regional Center, the other is the Regional Evaluation Center, and the third one is the Study Center. So this highest enrollment in the LSC is also one of the key activities which is possible through the promotion activity done through the academics. And we have three academics with us, Dr. Jaja Kumari, Dr. S. Vijay Raghavan, and Dr. Prasitha Unnikrishnan. And the administrative wing, we have the Dr. K.J. Joseph, the Dr. K.M. Muralidharan, Dr. Manju, Dr. Ansar, Dr. Sebastian, and Dr. Sujini. So these people help us in functioning all the student support services. And the best part of 2020 was the Swayam Prabha channel being made alive for the channel-based counseling session in Malayalam language for the BAG program. So, as the university with this establishment and its network of 22 LSC being ODL compliant, we get the promotion done, facilitated by the teaching learning process of hybrid methodology, converging the virtual and the face-to-face based on student enrollment. And we are also in the move of the university to upload all the online transactions, whether it is the face-to-face counseling session which is recorded or conducted through the Google Meet and being uploaded in the YouTube channel of Regional Center Cochin, so that whoever missed it can view it again, or who have not seen it can be also be seen. And also it also paves a way for public audit of what is being transacted in the within the four walls of the classroom. The orientation program, the meeting of LSCs, the teaching learning situation, the extension activities, and also the ability of the staff to be a part of resource persons for conferences and publications in papers, and the collaborations organized for conduct of the promotion meeting, the utilization of resource person from outside for the open and enrichment session, and the participation of the academics in continuing education amidst the other commitments.
because after the post-pandemic situation, the new normal situation of virtual being integrated with the face-to-face has come into effect even in IGNOU, and this made it possible, a reality that things can move among the commitments of the office also. The Unnat Bharat Abhiyan activities, the official language related activities by the Town Official Language Implementation Committee the regional center was also part of it, and Asadika Amit Mahotsav, we also were part of it, and the components of being the resource person of Ek Bharat, Shrestha Bharat was also possible by the academics of regional center, Cochin, in collaboration with the Himachal Pradesh Regional Center, the Trivandrum Regional Center, the Calcutta Regional Center, and the Port Blair Regional Center. And Har Ghar Tiranga, all the videos which we have collected for this Har Ghar Tiranga, we have uploaded it in the YouTube channel, and you can be part of it by viewing it. And NEP 2020, as you are seeing, the digital lock system and the academic bank of credits being a new reality in compliance to the NEP 2020 was inaugurated today by our Vice Chancellor. And as part of it, this NEP 2020, after 2 years of launch, continuing education program was made possible by Stride IGNOU, and the regional center Cochin developed videos of promotion about this program in English, Hindi, Tamil and Malayalam language. The channel-based the counseling session which I was highlighting, as on today, we have conducted around 264 sessions till date. From 12th January 2022 when it was inaugurated. And term and examination, the responsibility has been equally shared by Mr. Muhammad Ansar in conducting of the term and examination. And the exam center at 14000 was also chaired for the office of the exam superintendent by our academics, Dr. V.T. Jalaja Kumari, Dr. S. Vijay Raghavan and Dr. Prasita Unnikrishnan. And the projects evaluated, the assignment response evaluated, the other internal and external components which were evaluated are also detailedly available session-wise for each of the 3 sessions. And it is also pertinent to mention, for the first time, the regional center staff have been deployed to regional evaluation center, and 3 of the staff have contributed for evaluation of 2 sessions of answer scripts at the regional evaluation center, Cochin. And we do reach to the students through Facebook, our YouTube, the tweets we send, and of late we have got the Instagram also with us. And you are witness to the gold medal received by Madam Shaini Shamsuddin and for the BSc General Program. And we are also glad that Professor Tom Varghese is the coordinator of 1402, to which the student was attached. And we welcome you, sir, and we appreciate your presence here with us. And as everyone, whether it is the President's speech or the Vice Chancellor's speech, the highlight for continuing education was there. And we can say in one of the quotations which Professor, the Honorable Vice Chancellor sir was sharing is that if you rob the knowledge from somebody, the knowledge will only develop in that person. So you cannot lose it when you are sharing. The only asset is that knowledge. And continuing education need not just by surfing our social media and getting the GK. Do you have a certification matters when it comes to employability. And when you have a certification, irrespective of the place where you are planted, you can grow, and wherever you go, you will be recognized for the certification you have. And on this day, I welcome each one of you to be with us to receive the degree. And as sir was telling, it will be worthy of what you are being called based on the certification, highlighting of the fear of God and the love for the country. You will execute it as in the days by.
Thank you for listening to this report. A detailed report will be uploaded in the Regional Center Cochin website. Thank you.